Assalamu alaikum to this Ziauddin University Dialogue series. And we are actually focusing today on the economic problems of Pakistan and what are the out-of-the-box solutions being thought about by the prominent economists of Pakistan and the practitioners also. In this, we are going to focus. Our focus is more on the solutions, actually, proposed out-of-the-box solutions. Out-of-the-box meaning things that have not been tried or have been tried very half-heartedly. I would request now, we'll start with Dr. Shahida Wizaarat to name 3 or 4 major things that require a major out-of-the-box treatment. And then I will go to Shabbar Zaidi Saab and then, of course, to Dr. Shahid. Oh, shukriya, Dr. Saab. Thank you very much for giving me the opportunity. Actually, I have been talking about out-of-the-box solutions for a very long time, for about 22 years. But there is no interest in out-of-the-box solutions. And in fact, just before this government came to power, I convened a conference at IOBM, and I also invited President Arif Alvi, and I presented some out-of-the-box solutions. And then I passed on my out-of-the-box ideas to many PTI leaders. They were, for 6 months, they were sort of sitting on the fence. So I thought that maybe there's going to be some appetite for my out-of-the-box solutions. But after that, after 6 months, they went to the IMF. And then recently somebody suggested to me that why don't you present your out-of-the-box solutions to the Chief of Army Staff, because the country is faced with such a serious problem. So they might be interested in out-of-the-box solutions. So I sent a message to the ISPR that we can formulate some out-of-the-box solutions for the country on 18th May 2022. And I sent my message in the morning, and by the evening I got a message from ISPR saying that thank you very much, madam, we'll contact you. But ever since that day, nobody has contacted me. अच्छा, Dr. Shahida, ये इस पे बताइए कि what are the 3 major areas जिसके बारे में we will then ask you later on to explain your solutions. But we are in the first round, we will like to just make a list of the major problem areas that you think require addressing. Okay, there are lots of problems. The real issue is, first of all, recently I wrote a paper, and in that paper we discovered that Pakistan's debts are becoming unsustainable. And I sent this copy of my paper to many people, that debt unsustainability means that the country will not be able to service its debts. अब आप देखिए कि Pakistan में, this is number 1 problem. So what is number 2 in your opinion? Can I just talk about this problem for a minute? वो हम detail में आपको I'll give an opportunity for you. जी. Okay. दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस जमा कर रही है, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिस तरह से सारी बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लिटरली लोगों को अब ये है कि पीपल कांट ईट देयर फूड बिकॉज दे हैव टू पे देयर बिल्स, पेट्रोल का भी और बिजली का भी और ये सब. मगर अगर आप, ये तो रेवेन्यू साइड पे है, अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखें तो आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट बड़ी अय्याशियां कर रही है. आप देखिए कि अभी मौजूदा हुकूमत, अभी वो इंग्लैंड गए थे. और मेरा ख्याल, सॉरी, जब आपने रेवेन्यू साइड, बिफोर यू गो टू एक्सपेंडिचर, सो व्हाट यू आर सेइंग इज के वी आर इंक्रीजिंग दी लेवीज, जो टैक्स कलेक्शन का जो है, जीएसटी की बात कर रही हैं आप? मैं बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट जो
बिजली के उसने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से खाने पीने की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और So जिसकी energy वजह tariff. से So basically you are इंडस्ट्री saying that the government, the problem is focus on energy tariff, right? energy sector, but I also feel that the government is targeting industry. जो भी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लगा रही है जिससे इंडस्ट्री बिल्कुल नॉन वायबल होती जा रही है। ये नहीं कि आप देखिए कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ रही है बिकॉज हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमारी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है और उसके बाद फौरन हुकूमत ये करेगी, कुछ दिन के बाद वो कहेगी इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग करेगी। अब ये देखिए एक हिमाकत हुकूमत 1990 से करती आ रही है अच्छा, एक कि सेकंड, अब आपने कहा एक तो टैक्स का हो गया कि टैक्स का डायरेक्शन जो है इंडस्ट्री के ऊपर है जिसकी वजह से वो अनकम्पेटिटिव हो रही है, और अब आप यू आर आल्सो मेंशनिंग द एक्सपेंडिचर साइड, नाउ यू हैव मूव्ड टू। हाँ, मैं पहले ये कहता हूँ इंडस्ट्री पे भी और गरीब लोगों पे भी। अच्छा, गरीब और पुअर लोग, गरीब लोग और लोअर मिडिल क्लास, इन सब पे पूरा बोझ है इन टैक्सेस का और इंडस्ट्री पे है। उसकी वजह से इंडस्ट्री नॉन वायबल हो रही है और ठीक है, अब ये तो हो गया। हुकूमत अब तीसरा प्रॉब्लम आपने बताया जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जी जो इशू मॉनेटरी पॉलिसी का ये है कि गवर्नमेंट जब कहेगी कि देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो अब लेंडिंग रेट को बढ़ाना चाहिए। और ये बात मैं 90 की दहाई से कहती आई हूँ कि लेंडिंग रेट जब बढ़ाया जाता है जब इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, और अगर इकोनॉमी बहुत हीट अप हो रही हो कुछ पिछले 20-30 साल से, तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है जैसा चाइना में हुआ था। मगर उसके बावजूद उन्होंने लेंडिंग रेट नहीं बढ़ाया था। मगर पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम देखिए हम जब भी कीमतें बढ़ाते हैं बिजली की और पेट्रोल की तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है और जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक है, चले मगर अब आप चार हुकूमत, प्रॉब्लम हो मैं गए, जरा नाउ मुकम्मल कर लूं, हुकूमत उसको कोशिश करती है एड्रेस करने की डिमांड पुल मेजर्स के थ्रू। उसकी वजह से हमारा रिसेशन, हमारी इकोनॉमी में और बहुत ज्यादा रिसेशन आ जाता है और ज्यादा तबाही आ जाती है। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये चार पॉइंट्स डॉक्टर शाहिदा वजारत के हैं, एंड नाउ आई विल मूव टू शब्बर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, मैं डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन पे चला जाता हूँ। पहला मेरा सोल्यूशन ये है कि कल से आप पाकिस्तान में एनर्जी का डे लाइट यूज इम्पोज करें और आफ्टर डे लाइट no commercial activity should be undertaken. In that manner, you will save something like 3,500 megawatts of the electricity, which costs you something like $2-3 billion of the foreign exchange. This is the first thing out of box to be done from tomorrow. जी, गुड। Second, इससे हमारा कितना कंजम्पशन कम होगा? हमारा 3,500 मेगावाट, $3,500 मेगावाट। हाँ, 3,500 से हमारे कितना पेट्रोल का इंपोर्ट कम होगा? $2 billion। $2 billion। $2 billion आई थिंक इज द एंटायर हाउस होल्ड कंजम्पशन। जी, क्या कह रहे हैं? इज हाउस होल्ड का टोटल इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड का नहीं है, ये हाउस होल्ड की बात नहीं कर रही, कमर्शियल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, $2 billion इससे मिल जाएंगे। नहीं, देखिए, आपका एनर्जी का बिल सस्टेनेबल नहीं है अब, तो अगर आपका जो बुनियादी मसला है वो करंट अकाउंट का डेफिसिट है। जी, पाकिस्तान का मसला कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ करंट अकाउंट का डेफिसिट है। ठीक है जी। तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये है कि किसी भी शरीफ मुल्क के अंदर बाजार शाम को नहीं खुलता है। ठीक है। तो बाजार जो होता है ना, बाजार, हमारे माशरे में बाजार अच्छा लफ्ज नहीं है। बाजारी का मतलब होता है जो खराब काम करता है। तो बाजार को बंद करें आफ्टर द डे लाइट।
चले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आई टोटली अच्छी बात तो है सर, मगर आप कुछ सीरियस नहीं लेते ना, अच्छी बात तो बहुत सी बातें होती है। चलिए जी आगे नेक्स्ट। चलिए, और इसके अलावा नेक्स्ट ये $2 बिलियन है, लेकिन $20 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं कैट की वजह से, सिर्फ पेट्रोल की। करना कि अगर आपकी बोर्ड मैनेजर नहीं है तो पहला काम आपको ये करना है ना कल से, कि आप बाजार को 6 बजे बंद कर दें, तो आपकी 3,500 मेगावाट बिजली की बचत हो जाएगी, और जो आपका लोड शेडिंग है वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। दूसरा ये है कि इमीडिएटली पाकिस्तान की इकोनॉमी पॉलिसी साइड पर एक्सपेरिमेंटेशन खत्म करें, जी, और whatever is the international best practices for taxes, for finance and other thing वो अडॉप्ट करें। और ये जो हम पाकिस्तान का टाइम ज़ाया कर रहे हैं जब हम चीजें अडॉप्ट करते हैं जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कहा कि हम कन्वेंशनल बैंकिंग को खत्म करेंगे और हम इस्लामिक बैंक के लेकर आएंगे, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। whatever is the international best practices should be adopted, because this is a complete wastage of time, energy of the people, and this country is going on a downfall because टैक्स में हम प्रिजम्पटिव ले आते हैं, कभी हम कुछ चीज फिक्स टैक्स ले आते हैं। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। जो भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टैक्स की, फाइनेंस की, वो अडॉप्ट करें, और कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करें ऑन द पॉलिसी साइड ऑफ द फाइनेंस एज वेल एज ऑन द फिस्कल साइड। आप अडॉप्ट कर लें कि जो भी यूएस में होगा, जो भी इंडिया में होगा, जो भी यूरोप में होगा, वो हम फिस्कल पॉलिसी साइड पे अडॉप्ट करेंगे। हमारे पास ना अकल है ना तमीज है कि हम उसको अडॉप्ट कर सकें, तो हम अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उस पर अगर अपने आप को खराब करते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये है कि जो भी टैक्स लॉ यूके में आता है उसे आप अडॉप्ट कर लें, जो भी फाइनेंस लॉ यूके में आता है उसको अडॉप्ट कर लें। आपके पास जब तक आप सलाहियत डेवलप नहीं करते, एक्सपेरिमेंटेशन खत्म कर दें। तीसरा मेरा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल मेटल कैपिटल है, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में है, इस तरह जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के ऑफिसर्स हैं और रेगुलेटर्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर को डील करते हैं, लाइक एसईसीपी, लाइक एफबीआर, लाइक नेपरा, लाइक पैमरा, लाइक ओडीडीसी, उन सबको आप कराची ट्रांसफर करें, क्योंकि इस्लामाबाद का जो मैकेनिज्म है वो कमर्शियल माइंडसेट के लिए वर्केबल नहीं है। अगर आप ये 3 मेरे आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। मैंने आपको 3 सॉल्यूशन दिए हैं, आप इनको अडॉप्ट कर लें, बाकी आप सवाल जवाब इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा सा सवाल मैं पहले कह दूं तो हम जापान के मॉडल में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे क्यों ना जाए। अच्छा डॉक्टर शाहिद, देखिए मेरा बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए मैं इस पे भी बड़ी सिंपल बात कर, इस पे ऊपर भी आपको स्टेट बैंक की कमेटी बुलाने की जरूरत नहीं है। इस पे जो कुछ भी वेस्ट में हो रहा है उसको अडॉप्ट कर लें। जापान की अपनी इकोनॉमी के एक फंडामेंटल्स हैं, जो भी दुनिया में इस पोजीशन है उसको अडॉप्ट करें। अपने पास बैठ के, आपके पास ना रिसोर्सेज है ना डेटा है, तो आप इंटरेस्ट रेट की बात करें ना मेरे साथ। सर आपका जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसका जो फैक्टर है, आप क्या इंटरेस्ट रेट पे निकालते हैं? नहीं निकालते ना। तो ये जो आप बैठ के डिस्काउंट रेट के बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं, हम बैठ के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, मैं स्टेट बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ कुछ अर्से तक, ये सब बेकार की बात है ना सर, क्योंकि हमारा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है उस सारे सिस्टम को चेंज कर देता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपका सिर्फ एक तरकीब होनी चाहिए कि देखें, बात सुने, एक बात को हम ध्यान में याद रखें। हमारा पाकिस्तानियों का मसला ये है कि पाकिस्तानियों का जो कल्चर है वो इंडियन है, जो लिटरेचर है वो पर्शियन है, जो उनका मजहब है वो अरबिक है, और उनकी इकोनॉमिक्स इंग्लिश है। समझ आई आपको? तो जब इंग्लिश इकोनॉमिक्स है ना, तो इंग्लिश की तरफ चलाएं। मैं शाहिद साहब से 3 मेजर प्रॉब्लम्स पूछ लेता हूँ। शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया। पहली जो है वो हमारी जो इकोनॉमी है वो एलीट की इकोनॉमी है। हमारे सियासतदान इख्तियार में आने के लिए और इख्तियार में बरकरार रखने के लिए जो पॉलिसियां बनाते हैं माशी, और दूसरी वो होती हैं उनके दबाव पर या उनके मफाद में। अगर उसके लिए कानून तोड़ना पड़े तो कानून तोड़ देते हैं, अगर उसके लिए नया कानून बनाना पड़े तो नया कानून बना देते हैं, और इसका बोझ मईशत और 22 करोड़ अवाम पर डाला जाता है। और इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट इसमें मामलत कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आला अदलिया
जिन्होंने लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ कराने के लिए अपने इख्तियारात से मुतअद्दिद बार तजावुज़ किया, नंबर 1। और एक बैरूनी अशराफिया है जिसमें इस्तेमारी ताकतें और IMF है, और इन दोनों मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया में कोलूजन है, नंबर 1। अगर इसको तोड़ना बुनियादी जरूरत है। नंबर 2, जो इंतखाबी मंशूर है उस पर तकरीबन 100% अमल नहीं किया जाता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63A की बात कर रही थी तो मैं तो ये कह रहा था उन लोगों पे लगना चाहिए जिन्होंने के हुकूमतों को वोट दिया है, इसलिए अगर आप अपने मंशूर से 100% इनराफ करते हैं बेसिक पॉइंट से, तो आपका जो हक हुक्मरानी है या मैंडेट है वो तो खत्म हो गया। तो उन पर लगना चाहिए जो मंशूर से इनराफ कर रहे हैं। नंबर 3, 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इसको मनसूख करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ हमारा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, हमारा मसला है तिजारती खसारा, और उसको हम 9 बरसों में कोई $200 अरब की कारकुनों के नाम से तरसीलात आई हैं, जिसमें कारकुनों की तो है वो 40 बिलियन, बाकी तो बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है। इसके सबूत मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था। तीसरी चीज ये कि जो इंतखाबी फॉर्म है मैं समझता हूँ उसमें तब्दीली आनी चाहिए, उसमें हलफनामे होने चाहिए कि मैंने कर्जे माफ नहीं कराए, पहले वापस कर दें, मेरे बैरूनी मुल्कों में असासे नहीं है और मैंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया वगैरह। अगर ये चीज जारी रहती है तो मैं समझता हूँ कि मईशत में बेहतरी आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो इन चीजों को अगर हम तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि अवामी दबाव से आएगी, जिसमें किसी को कोई दिलचस्पी मुझे नजर नहीं आ रही, तो फिर जो भी आप इस्लाहात करेंगे वो बेमानी होंगे। अच्छा, इस वक्त अब डॉक्टर शाहिदा आप कुछ मॉनेटरी और उसके बारे में बात करें। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि शब्बर जैदी साहब ने कहा कि हमारे जो वो है माशरत, उसको बिल्कुल अमेरिका और बरतानिया के मुताबिक कर दिया जाए। जब आपने सवाल उठाया कि जापान की तरह क्यों ना कर दिया जाए, वहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, तो उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल्स उनसे फर्क हैं, मगर हमारे फंडामेंटल्स तो अमेरिका और बरतानिया से भी फर्क हैं। तो हम एक मुल्क को अपना रोल मॉडल बना लें और दूसरे को हम रिजेक्ट कर दें कि वो हमारे से फर्क है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब शब्बर जैदी साहब ने ये कहा कि हम अमेरिका और बरतानिया को रोल मॉडल बना लें और नित नए तजर्बे ना करें, तो उससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि वो जो अभी फैसला आया है इंटरेस्ट रेट को के बारे में इस्लामी शरई अदालत का, शायद वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये तासुर मिला। तो शायद वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि उनका क्या मतलब था इससे। मैं समझती हूँ कि हम अगर इस मुसलमान हैं और अगर हम ये मानते हैं कि आप जब आपकी आवाज कम हो जी, आप जब इंटरेस्ट रेट को अपने मईशत पे आपने किया हुआ है, तो वो कहा जाता है कि आप अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट है कुरान शरीफ में कि आप जब इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं तो अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं, और फिर अगर हम ये कहते हैं कि इसी सिस्टम को कायम रहना चाहिए क्योंकि ये बरतानिया और अमेरिका में यही सिस्टम कायम है, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान जो बना है इस्लाम के नाम पे बना है, तो हम कैसे इस्लामिक इन चीजों को रिजेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो नित में, और ये मैं समझती हूँ एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी होगा। अच्छा, तीसरे मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो है जिनका ताल्लुक वर्ल्ड बैंक से है, IMF से है और वेस्टर्न गवर्नमेंट से है, उनका गहरा ताल्लुक। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपके लोग जो हैं जो आपकी मईशत को संभाल रहे हैं वो अगर बाहर से आए हुए हैं, उनकी नेशनैलिटीज भी बाहर की हैं या पाकिस्तानी भी हैं, तब भी उनका गहरा ताल्लुक है अमेरिका और बरतानिया से और वर्ल्ड बैंक से, IMF से, तो आप कैसे तवक्का करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसियां लेके आएंगे जो उस मुल्क के मफादात के मुताबिक होंगी। आप देखिए आजकल जो मईशत का हाल है, बिल्कुल ये लगता है कि किसी दुश्मन मुल्क के लोग बैठ के पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसियां बना रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि लोगों को यानी कि लोग इतना रो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, मगर साफ ये लगता है कि उनको किसी चीज की सजा दी जा रही है, ऐसा लगता है, और लग रहा है कि हमारे दुश्मन मुल्क हमारी इक्तिसादी पॉलिसियां बना रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग जो काबिल भी हों, ईमानदार भी हों और पाकिस्तानी शहरी भी हों, डोल शहरी भी ना हो,
वो पाकिस्तान के इक्तिसादियात पे और पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाए। ये सबसे बड़ा अहम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। देखिए जी, मैं थोड़ा सा बिफोर वी स्टार्ट मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सही बात की, मैं उस इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बारे में बात कर रहा था। मुझे बड़ा एहतराम है उस शरीयत कोर्ट के डिसीजन का, मुझे बड़ा एहतराम है जो कुछ भी कुरान मजीद में इंटरेस्ट के बारे में लिखा है। आपका हक है शाहिदा वज़ारत साहिबा कि आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लें। आपका यह हक हासिल नहीं है कि मेरे ऊपर अप्लाई कर दें आप उसको। आपको नहीं लेना इंटरेस्ट, आप नहीं लें। आप अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं, मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हूँ। आप अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं, आप जवाब देंगे। मैं अपने इंटरेस्ट के ऊपर जवाब दूंगा। आपको इस्लामिक बैंकिंग चलानी है, आप चलाएं, मगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग को बंद नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, आगे सुन ले मेरी बात। मैं दूसरी बात जो उन्होंने कहा, मुझे कहा कि मैं जापान की मिसाल दे रहा हूँ और इंग्लैंड की मिसाल नहीं दे रहा। मैं इंग्लैंड की मिसाल नहीं, ये नहीं कह रहा सब कॉपी करें। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारा लॉ है, जो हमारी रेगुलेशन है, ये डिराइव फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन सिस्टम है। ये जापान से अडॉप्ट नहीं हुआ है, ये एंग्लो सैक्सन सिस्टम का कंटिन्यूएशन है। हम उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उस पूरे प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं जो वेस्टर्न इकोनॉमी दुनिया में चल रही है। आप उस मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। जापान हमारा सिस्टम नहीं है, हम एंग्लो सिस्टम लॉ है, हमारे तमाम लॉ एंग्लो सिस्टम लॉ से बिलीव करते हैं। हमारे मुल्क में कोई चीज इस्लामी और नॉन इस्लामी नहीं है, हम एंग्लो सिस्टम का बिलीवर हैं और हम इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर जोर रोशनी डालें कि जो एक पॉइंट उठाया था कि हमारे यहाँ कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। मेरे आज प्लस इन्फ्लेशन के लिए हमें आज का मेरी बात सुन ले। आज का अखबार पढ़े आप, शायद आपने पता नहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। आज का बिजनेस रिकॉर्डर पढ़े, आज एक आर्टिकल मेरा छपा है, उसका ये पार्ट 1 है। उसका मैंने आर्टिकल का नाम है इज सॉवरेन डिफॉल्ट इनएविटेबल। आज बिजनेस रिकॉर्डर में छपा है, आप अभी खोल लीजिएगा। तकरीबन अच्छा खासा लंबा आर्टिकल है। देखिए मसला हमारा ये है कि 1960 से लेकर आज तक हम इंपोर्ट लेड कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी चलाते रहे। हमने कभी इंडस्ट्रियल बेस्ड सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी नहीं चलाई है। पाकिस्तान 1960 से लेकर आज तक इंपोर्ट लेड और कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी चलाता रहा है। और जब आप कंजम्पशन लेड इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी चलाएंगे तो और एक स्टेज पर आकर जब आपके पास उसके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। और पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है, पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है। आप उससे कुछ भी कहते रहे, पाकिस्तान, मैंने सीरियस आर्टिकल का नाम लिखा है इज सॉवरेन डिफॉल्ट इनएविटेबल। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि आपका जो इंपोर्ट लेड कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इसके साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। इसका कोई ताल्लुक इलीट के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक किसी के साथ नहीं है। ये हमारा बेसिक पैराडाइम है कि हम कंट्री को कैसे चलाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये हम इसलिए चला रहे थे सर कि हमारे पास डॉलर अवेलेबल थे। कभी अफगान वॉर से आ जाते थे, कभी सीटों से आ जाते थे, कभी सेंटों से आ जाते थे, कभी हमारे पास वॉर ऑन टेरर से आ जाते थे। तो हमारे पास डॉलर अवेलेबल थे, हम चला रहे थे। मगर जब से डॉलर ड्राई अप हुए हैं, अब हमारे पास सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसीलिए मैंने आपको पहला जो सोल्यूशन दिया था, उसमें सोल्यूशन ये दिया था कि हमारा सिर्फ एक मसला है पाकिस्तान का, हम आईएमएफ में क्यों गए हैं। मैं उस वक्त टीम का मेंबर था जब इमरान खान की टीम आईएमएफ में गई थी। हम क्यों गए थे आईएमएफ में? हम आईएमएफ में इसलिए गए थे सर कि हमारे पास 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था। $20 बिलियन आज भी $20 नहीं है। तो अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप डॉलर अमेरिका से ही लाओगे ना। हम जितनी मर्जी गालियां दे दें अमेरिका को, जितनी मर्जी उनको कोसते हैं, जितनी मर्जी इसराइल के खिलाफ उसको करते हैं, आखिर में तो जाके वाशिंगटन के पैर पकड़ने हैं ना। इस बात को क्यों भूल जाते हैं हम? देखिए, मैं ये कह रहा था, ये जो पॉइंट है कि हम जब जीडीपी बढ़ाते हैं तो हमारा कैड बढ़ जाता है। उसकी वजह यही है कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो ज्यादातर इंपोर्ट लेड है। तो इसको करने के लिए हमें ऐसी इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करना होगा जिसके अंदर इनपुट इंपोर्ट से ना आए। उसके बगैर ये स्ट्रक्चरल इशू है। मैंने इस पे बहुत काम किया है और मैंने भी ये इसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईएमएफ के पास चले जाएं, इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट करने की जरूरत है। मैंने बहुत से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट करके दिखाए हैं, और मैंने उसमें ये बताया था कि आपको, अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आपको कुत्ते और बिल्ली का खाना इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आप इंपोर्टेड चॉकलेट्स और चीज और ये तायुशात, मेकअप की चीजें, गाड़ियां और फोन्स, मोबाइल फोन्स, ये ना इंपोर्ट करें कुछ साल के लिए। आप अपनी जो आपके डॉलर्स हैं जितने, आप सिर्फ उनको रखें अपनी अहम जरूरियात आप के लिए। बताइए कि 5-4 कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो काम करना, अगर हम उनको बंद कर दें, फर्ज करें, नहीं, तो इंडस्ट्री को ना हमारा बंद करें, इंपोर्ट आप का मसला इंपोर्ट कब हो बंद जाए? करें। आप इंडस्ट्री सर, को आप नहीं बंद इसे- करें, आप आप इसे इंपोर्ट्स को बंद करें। मिसाल आप के इसे तौर पे पूछिए। आप इंपोर्टेड चॉकलेट्स को, इंपोर्टेड चीज को, फल फ्रूट को, कुत्ते का और बिल्ली के खाने को, मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, देखिए हम अमीर लोगों की तय्युशात की वजह से मुल्क को हमने यरमाल कर दिया है, और हम आईएमएफ के पास बार बार जाते हैं क्योंकि इस मुल्क के लोग हैं जो दौलतमंद हैं, उनके बिल्कुल उनको मुंह को ये सारी चीजें लग गई हैं, और उनकी वजह से पूरे मुल्क को ये कीमत अदा करना पड़ रही है कि हम लोगों के पास। अच्छा, चलिए अब आप बात कीजिए जी। बात मैंने पहले भी कहा था, ये अशराफिया की मईशत है कि हमारा जो बुहरान है वो इंजीनियर है, वो अशराफिया के मुफाद में बनाया गया है। मैं अभी आपको आदात शुमार पेश कर दूं। सारा, पहले मैंने आपसे कहा कि 9 साल जो गुजरे हैं उसमें 270 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ। 270 अरब डॉलर, जो मुल्क 1 अरब डॉलर के लिए नाचता फिर रहा है आईएमएफ के पास, उसने ये अय्याशी की। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा हमने क्या काम किया कि 200 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज मंगाई हैं, जिनमें से बेशतर जाली रेमिटेंसेज हैं, वो रेमिटेंसेज नहीं है, उसका बेशतर हिस्सा वापस चला गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत। अगर मैं ये कह रहा हूँ ये जाली है तो उसका सबूत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था कि 2017 में 19.4 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आई। उसी साल में लोगों ने जाली चोरी के पैसे से, नाजायज पैसे से, जायज पैसे से डॉलर खरीदे, बैरूनी करेंसी अकाउंट में बैंकों में जमा किए और उस पैसे को बाहर भेज दिया। वो है 15 अरब डॉलर। तो बाकी तो वर्कर्स रेमिटेंसेस जो 5 अरब डॉलर थी वो रह गई। तो यहाँ तो आप जाली रेमिटेंसेस मंगा के खेल को गुजारा कर रहे हैं। नंबर 1, इंपोर्ट्स का ऐसा हुआ कि हमारा जो अदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने दानिस्ता मार्च से जून 2020 तक एक हिकमत अमली के तहत डिस्काउंट रेट को गिराया, और वो डिस्काउंट गिराया 13.25 से कम करके 7% कर दिया। उसके बाद बैंकों ने सस्ते कर्जे देने शुरू किए। उन सस्ते कर्जों पर लेके बेतहाशा इंपोर्ट्स हुई, जो मैं अभी आपको फिगर दूंगा, और उस नुकसान को पूरा करने के लिए बैंकों के खातेदारों को जो करोड़ों हैं उनको मुनाफे की शरह कम की, और जो कानून तोड़े वो मैं आपको बता देता हूँ। 26A4 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, उनसे 800 अरब रुपया कानून तोड़ के खींच लिए गए और सस्ते कर्जे देके बेतहाशा इंपोर्ट शुरू कर दी गई। अब अगर आप देखें कि 2021 में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो 31 अरब डॉलर था, 2022 में इसी पॉलिसी के तहत ये 48 बिलियन डॉलर हो गया। 17 अरब डॉलर आपने जो है अपना तिजारती खसारा बढ़ा दिया। अब अगर जाइए कि आपकी इंपोर्ट्स की क्या पोजीशन है, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में इंपोर्ट्स थी 44 अरब डॉलर और 2022 में हो गई 80 अरब डॉलर, यानी 35 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट्स की, जिसमें गैर जरूरी इंपोर्ट शामिल थी। वो क्यों की? क्योंकि स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने सस्ते कर्जे शरह सूद पर फराहम करके इसको बुहरान को पैदा किया। ये है वो हिकमत अमली नंबर 1। अगर आप जो है इसको जो है इंपोर्ट पॉलिसी को नहीं बैन करते, मॉनेटरी पॉलिसी को जमीनी हकाइक से नहीं बनाते, और 22 मरतबा आईएमएफ के पास गए हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं जी हम आईएमएफ के पास गए, डॉलर नहीं है। आप 1958 से 22 मरतबा उसके पास गए आईएमएफ के पास। नंबर 1, भारत तो जो है वो 2011 के बाद से बांग्लादेश नहीं गया। आप तो हम क्यों जा रहे हैं बार बार? इसलिए जा रहे हैं कि हमारी हर हुकूमत जो है टैक्स एमनेस्टी देने को अपना फर्ज मनसबी समझती है। हर हुकूमत टैक्स एमनेस्टी देती है, हालांकि उनको पता है कि अगर काला धन मुल्क में पैदा हो रहा है तो टैक्स एमनेस्टी देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये है अमानत में खयानत। मुझे कोई बताया जाए क्योंकि पाकिस्तान में इस पर कोई बात कर रहा है कि हर हुकूमत को एमनेस्टी देती है। नंबर 2 बात यह है
कि इस वक्त भी जो बहरान है ये आर्टिफिशियल है। पेट्रोल के नर्ख तो आप बढ़ा सकते हैं 94 रुपीज, आप ये भी कह सकते हैं कि हम दिवालिया हो जाएंगे अगर पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएं। मगर बता दें कि इस माशरे में कोई आदमी ये बात कर रहा है कि 2019 में जब टैक्स एमनेस्टी आई थी तो एक कानून बना दिया गया था कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं नाजायज दौलत से बनाए गए हैं, जिसको के जो है एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, जिसकी तफसील हुकूमत के पास है, अगर हुकूमत चाहे और कानून ना तोड़े तो 900 अरब रुपया मिल सकता है, लेकिन हुकूमत उन पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, कानून तोड़ रही है। मैं आपको बता दूं, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया जमा कराया कौमी बचत स्कीम में, उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया और ना उसने एमनेस्टी से फायदा उठाया, हुकूमत के पास तफसील मौजूद है। क्या मुश्किल है कि आप 2 लाइन का खत लिख दें कि आपके पास ये कौमी बचत स्कीम में पैसा पड़ा है, आपने इसकी इनकम पर टैक्स नहीं दिया, 1 हफ्ते में आप दे दें वरना हम इस पर टैक्स ले लेंगे। तो ये 900 अरब रुपए जो मिल सकता है वो तो नहीं लेंगे, मुल्क को दिवालिया करने की बातें कर लेंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे। तो कोई माशरे में किसी ने इर्ताश पैदा हुआ, किसी सियासतदान ने, किसी पार्लियामेंटरी ने, किसी माहिरीन ने, किसी वकला ने कि जनाब ये तो 900 अरब रुपया क्यों नहीं वसूल करते, प्रॉपर्टी में है, बैंकों में कई हजार अरब के डिपॉजिट हैं जो डिक्लेयर नहीं है, गाड़ियां हैं, तमाम चीजें हैं, और आप 1.5% के ऊपर बिल्डिंग को कहते हैं हमने छूट दे दी। तो ये है वो चीज जो कि आपको ठीक करने की जरूरत है और जो हम करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी बात जो मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं अभी जो फैसला आया है शरी अदालत का, मैं एहतराम से कह रहा हूं कि मेहरबानी करके उसको पढ़ लें। हमारा आइन कहते हैं 38F कि रिबा का जल्द से जल्द खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या हमें पता है 31 बरस शरी अदालतों में केस पड़ा रहा, तनख्वाहें लेते रहे वो और वो फैसला नहीं कर रहे थे। मैं चेयरमैन हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का, मैंने ओपन लेटर लिख दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट को, शरीयत बेंच को। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो है प्रोडक्ट्स हैं जो इस्लामी बैंक यूज कर रहे हैं और वो सूद उनमें शामिल है। और हमारी शरीयत बेंच ने 31 साल तक करने के बाद 20 साल इसके पास पड़ा रहा, उनको इंडोर्स कर दिया कि ये जायज है, बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीकात किए। उलमा को पता है, माहिरीन को पता है कि इसमें सूद शामिल है। तो ये हमारा शरई अदालतों का हाल है। हम उस अदालत के फैसले को जो है, मैं यहाँ तक तो मानता हूँ कि सूद हराम है, ठीक है, लेकिन बाकी जो कुछ उन्होंने फैसला दिया है वो तो सूदी प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर दिया है उन्होंने। तो किसी ने माशरे में कोई इर्ताश पैदा हुआ चंद लोगों के अलावा कि ये क्या तमाशा हो रहा है। तो बुनियादी चीज जो मसला है वो है अशराफिया का। हमारी पॉलिसियां उनके मुफाद में बनाई जाती हैं। IMF के पास हम बार बार इसीलिए जाते हैं कि हम तैयार नहीं है इस बात के लिए। और जैसे मैंने कहा कि आपकी रेमिटेंसेस जाली हैं, 200 अरब डॉलर के में से ज्यादा कारकुनों की हैं 40 अरब डॉलर। जैसे मैंने आपसे कहा, दोबारा बता दूं, गौर कर लें, सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि रेमिटेंसेज आई एक साल में 19.4 अरब डॉलर, उसी साल 15 अरब डॉलर बाहर चली गई। ठीक है, अब बाहर जाने पर फॉरेन करेंसी में कब्जा है, मगर इस वक्त जो रेमिटेंसेज आ रही है हुंडी हवाले से पैसा वापस जा रहा है, जो यहाँ आ रहा है टैक्स फ्री पैसा है, उस पर जो है ना फायदा नहीं उठाया जा रहा। तो इन चीजों को अगर आप नहीं करते हैं, और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इनका तो मंशूर से ही हम फ्रॉड कर रहे हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। एक मिनट, मैं एक शाहिद साहब से एक सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा था कि जब 13% से 7% कर लिया तो लोगों ने कर्जे लेकर कर लिए, तो अब अगर वो 0% कर देते हैं तो वो लोग फिर यही करेंगे और फिर 2 साल बाद आके उसको रिवर्स कर देंगे। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि ये किस हकीम ने कहा था कि स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत सस्ती शरह सूद पर कर्जे दे? कौन सा कानून था ये? नहीं, जब आप 0% कर देंगे अगर शरीयत कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जी मैंने शरीयत कोर्ट ने कतई नहीं कहा है, मैं आपको एक एक लफ्ज मैंने पढ़ा है, शरीयत कोर्ट ने ये नहीं कहा है। देखिए, इस्लाम में ये कहा गया कि सूद हराम है। सूद का मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हराम है। अगर आप मुनाफे की शरह पर रेशोज में एग्री करते हैं, मसलन 2 पार्टनर है, कहता है जी मैं 60% मुनाफा लूंगा, दूसरा 40 लेता है, या 70 और 30 लेता है, वो जायज है। तो इस्लाम जो कुछ कह रहा है वो कह रहा है कि मुनाफे में शरीक हों, ये नहीं कह रहा 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस्लाम इज नॉट फॉर 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस्लाम इज अगेंस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज सूद। हम ये चाहते हैं कि जब बैंक कर्जे दे खातेदारों को, लोगों को, तो उनके मुनाफे में शिरकत करें और उस मुनाफे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिपॉजिटर्स में। ये इस्लामी तरीका है। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी इस पे। और दूसरी बात ये आप डॉक्टर शाहिद आप बताएं।
जी जी मेरा जहाँ तक मेरी तो इतना मुताला नहीं है इस्लामिक उस पे, मगर जो मेरा मुताला है उसके मुताबिक इस्लाम में इस किस्म का रिटर्न जायज है जिसमें मुनाफा और नुकसान और नफे दोनों का इम्कान हो। मगर अगर सिर्फ मुनाफे का वो हो इम्कान तो वो नाजायज है। तो अगर इस तरह से इस्लाम में इंटरेस्ट रेट हराम है, मगर अच्छा शराकत दारी, एक मिनट में खत्म कर लूं, शराकत दारी की इजाजत है मगर इंटरेस्ट रेट हराम है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि शाहिद साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दिया, 7% कर दिया। देखिए बात यह है कि आप दूसरे मुल्कों से कंपेयर कीजिए, पाकिस्तान में उसके बावजूद 7% था, मगर और मुल्कों के मुताबिक फिर भी बहुत ज्यादा था। और मुल्क देखिए, पाकिस्तान को असल में एक ऐसा एक वो बनाया गया है मुल्क जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिसियां हैं, इक्तिसादी पॉलिसियां, वो पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक नहीं बनाई जाती, वो मगरबी मुल्कों के और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल के मफादात के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसियां बनाई जाती हैं। क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो या तो उनके शहरी हैं या उनके तनख्वाहदार हैं और या उनके शहरी हैं और या उनके एजेंट्स हैं। हमारे यहाँ हमें इजाजत ही नहीं होती है कि जो लोग मुहिब वतन हैं, काबिल हैं, ईमानदार हैं, उनको कॉरिडोर्स ऑफ पावर में घुसने की इजाजत ही नहीं है। मुझे ये बताएं सर, आप बैठे हुए हैं, हमारा $80 बिलियन का बिल है इस वक्त इंपोर्ट का। मैं पूछता हूं कि आप मुझे ये समझा दें कि उसकी कंपोजिशन क्या है। आपको पता है, मैं बताता हूं कंपोजिशन क्या है, मैं बताता हूं फिर आपको समझ आ जाएगी। हमारा 30 अरब रुपए का एनर्जी प्रोडक्ट है। एनर्जी प्रोडक्ट का मतलब है ये ऑयल, पेट्रोल, ये एनर्जी प्रोडक्ट है। हमारा $8 बिलियन का हमारे पास ये है फूड का इंपोर्ट है। पाम ऑयल, चाय पत्ती, दालें, ये इंपोर्ट है। ये हो गया 38। हमारा $10 बिलियन का सर्विस का इंपोर्ट है। सर्विस इंपोर्ट होती है जहाज, सर्विस इंपोर्ट होती है एमिरेट्स की एयरलाइन, सर्विस इंपोर्ट होती है ये इंश्योरेंस, ये है 10 अरब का, ये हो गया 48। हमारा फार्मास्यूटिकल का इंपोर्ट है 4 बिलियन, हम दवा एक नहीं बनाते, ठीक है, ये हो गया 5 बिलियन। उसके बाद मशीनरी की इंपोर्ट हमारे पास है तकरीबन 10 बिलियन की, रिपेयर पार्ट की है 10 बिलियन की। आप कौन सी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं? देखें, ये बेकार की बातें बंद करें कि जी ये हो गया वो हो गया। आज की बैलेंस जो हो गया हो गया। देखिए ना, हमने ये सेमिनार आज इसलिए नहीं किया कि क्या हो गया, आज सवाल ये कि अब आगे क्या करना है। सवाल हम इसलिए बैठे ना सर कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या है, कि जो हो गया, आग लगा दी। अब बताएं कि आज से क्या करें। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि मैंने आपको इंपोर्ट के मोटे मोटे बिल बनाए, 30 बिलियन एनर्जी, 8 बिलियन आपका फूड इंपोर्ट, 10 बिलियन सर्विस इंपोर्ट, 15 बिलियन, तकरीबन 15 बिलियन की मशीनरी और स्पेयर पार्ट, प्लास्टिक और उसके मटेरियल 12 बिलियन, और ये जो बाकी कंज्यूमर आइटम है ये 3-4 बिलियन के आइटम। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को 6-8 उसमें इक्विपमेंट में आ जाते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स पे आ जाते हैं। तो सर ये हमारा बनता है 80 कि 80 में मैंने बंद क्या करना है? क्या मैं 30 का ऑयल इंपोर्ट कम कर सकता हूं? इसलिए मैंने आपको पहला पॉइंट ये दिया था कि पहले आप बड़ा आइटम पकड़ें, जो 30 बिलियन का आपका एनर्जी का बिल है उसको कम करें 10%। फिर आप कम करें ये जो आपने एयरलाइनों पे दिया हुआ, जो एमिरेट्स की फ्लाइटें 6 फ्लाइटें आती है रोजाना और चली जाती हैं, ये आपका इंपोर्ट का बिल है। आप इस पे पैसे देते हैं, आपके पास एक भी शिप लाइनर नहीं है, आपकी सारी एक्सपोर्ट फॉरेन शिपिंग लाइंस कर रही है। तो सर हमारा मसला ये है कि हम जज्बात में बैठ जाते हैं, हम रियलिटी को नहीं देखते। और आखिरी बात सर मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आज ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेरे पास अपने कर्जे अदा करने के पैसे नहीं है। एक निहायत ही वाहियात, कमीना, जाहिल हमारा दुश्मन मुल्क है, उसका नाम है यूएसए। उस मुल्क के पास IMF का कंट्रोल है और हमें अपने लोन 156 बिलियन डॉलर का रोल ओवर चाहिए। उसका रोल ओवर का डिसीजन अमेरिका लेगा, जो यहां बैठ के अमेरिका को गालियां देता रहेगा और ये कहता रहेगा कि जी हमें उन्होंने लूट लिया। ठीक है, आप बिल्कुल कल फैसला कर लें कि IMF से हमें नहीं जाना, तो 156 बिलियन डॉलर मुझे लाके दे दें कहीं से, और अगले वाले के पैसे लाके दे दें। मैं भी उनको गाली जुलूस में शामिल रहता हूँ गाली। अच्छा ये बताइए, सोलर पैनल्स सोल्यूशन है हमारे? सोलर पैनल आ जाएंगे सर, मगर सोलर पैनल से मैंने आपको अर्ज किया ना, 30 बिलियन डॉलर का जो सर आपने 76 के बाद कोई डैम नहीं बनाया सर। 30 बिलियन डॉलर का जो एनर्जी आ रही है, जितने भी आपकी पावर जनरेशन हो रही है,
सब फॉसिल फ्यूल से हो रही है, या LNG से हो रही है, या गैस से हो रही है, या कोल से हो रही है, या फर्नेस ऑयल से हो रही है। सर इस मुल्क में अंधेरा हो जाएगा अगर IMF नहीं आया, तो मुल्क में अंधेरा हो जाएगा। खुदा का वास्ता है ये चीजें बंद करें। अब आगे की सोचें, आपने प्रोग्राम इसलिए रखा है कि आगे की सोचें, ये बातें नहीं करें। तो आप ये बताइए सोलर देखिए, पैनल से कितनी बचा सकेंगे? मेरे ख्याल में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। ये आप देखिए, इसके मेरा बाद ख्याल इसी में ऐड कीजिएगा कि जो इंपोर्ट के मेजर आइटम्स हैं उनमें मैंने से बताया ना आपके सामने, मैंने आपके सामने रख दी, मैं दोबारा रख देता हूँ। 30 बिलियन का ऑयल है, 8 बिलियन का आपका फूड आइटम है, 10 बिलियन का आपका ये है सर्विस का इंपोर्ट, सर्विस मींस शिपिंग और एयरलाइन, और ये 15 बिलियन के करीब आपका मशीनरी का इंपोर्ट है, मशीनरी और ये स्पेयर पार्ट का। उसके अलावा आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको व्हाइट गुड्स बोलते हैं, ये AC DC ये सब जो होते हैं, ये कोई 8 से 10-12 है। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, एक्सपोर्ट के जो आपके पिगमेंट शिगमेंट होते हैं, ये तकरीबन 10 से 12 हैं। और जो आइटम मैडम कह रही है, ये जो फूड आइटम, बिल्ली कुत्ते का बिल, ये तकरीबन $1.5 बिलियन है। यस, ये $1.5 बिलियन गलत है, इससे बहुत ज्यादा है। मैंने इस पे पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट की है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ $1 बिलियन और $1.5 बिलियन का नहीं है। मैंने इस पे पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट किया हुआ है, और मैंने ये बताया था कि इस तरह हम $11 बिलियन बचा सकते हैं। लेकिन 80 और मैं बिलियन में से तो 11 बिलियन ही हुए ना। चले अगर 11 देखिए, बिलियन नहीं ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, और मैं इस पे एक पूरा सेमिनार करूंगी बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदारा पाकिस्तान को बार बार IMF के पास ले जाने की नहीं बात करें। पाकिस्तान ऑलरेडी तबाह हो चुका है, ऑलरेडी फाइनेंशियली हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मैं कुछ कह दूं आपके अब पाकिस्तान का जो डेट्स है वो अनसस्टेनेबल हो गए, और अगर आप मुसलसल पाकिस्तान को IMF के पास ले जाना चाहेंगे, तो मैं इसका ये मतलब समझूंगी कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी मुहिब वतन ऐसा नहीं करना चाहेगा। शाहिद साहब, आप बताइए कि इस इंपोर्ट में से किस चीज को कम किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये तमाम आइटम्स इसमें बताए जा चुके हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो इसको कैसे कम करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स? लेकिन इससे पहले जो मेरा पॉइंट था, मैं उसको पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, हम लोग जो बातें करते हैं वो परसेप्शन पे करते हैं। मेहरबानी करके कानून को पढ़ा करें। हमारे यहाँ भी कहा गया इंटरेस्ट रेट। क्या मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो सूदी बैंक्स हैं, यानी इंटरेस्ट बेस्ड बैंक्स, उनमें जो खाते हैं वो नफा और नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर है। आई एम टॉकिंग ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड बैंक, सूदी बैंक। और हमारा जो कानून है 26A(4) और 40A, इसमें स्टेट बैंक और वजारत खजाना पे जिम्मेदारी डाली गई है कि बैंक्स अपने मुनाफे में खातेदारों को शरीक करें। ये कानून मौजूद है। हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि स्टेट बैंक ने क्या हरकत की कि बैंकों को अहकामात दे दिए कि जो डिस्काउंट रेट है उससे आप मुनाफे की शरह को डिटरमिन करें। ये तो गैर कानूनी अहकामात है। 26A(4) और 40A मैं आपको बता रहा हूँ, मुनाफे में खातेदारों को शरीक करें सूदी बैंक। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट को इसके साथ लाने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद ही कानून को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरे, जब आप ये डिस्काउंट रेट की और शरह सूद की बात करते हैं, तो क्या हमें नहीं पता कि किसी जमाने में पाकिस्तान में कौमी बचतें 20% हुआ करती थी, आज 11-12% पर आ गई है। क्यों? क्योंकि हम उनको जो है मुनाफा में शरीक नहीं कर रहे हैं। आप जिन मुल्कों की बात कर रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी है। हमारे मुल्क में 18,000 अरब रुपए की डिपॉजिट है। आपने उनको शरह सूद से मुंसलिक करके 800 अरब रुपया तो मार्च 2020 से अब तक खींच लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक आप या तो कानून को बदलें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी वो शरह सूद से करना गैर कानूनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि आप इसको बुनियादी तौर पर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि $900 अरब जो आ सकते हैं, उस पर पाकिस्तान में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इस बात पर तैयार नहीं है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, 111(4) को मनसूख करें, GST को 17% से 7% पर ले आएं, पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है उसको 0 पर ले आएं। ये हमारी लुगत में शामिल नहीं है उस पर बात करना। ये है बुनियादी चीज। लेकिन ये आप देखिए, तमाशा जो हमने किया है वो आपको जो कुछ हुआ है, क्यों हुआ है? इसलिए कि जब आपने $80 अरब की इंपोर्ट्स कर ली, जो कि 2 साल पहले $45 अरब की थी, तो उससे हमारे रिजर्व पर दबाव पड़ा। मिड मई 2021 में $152 का डॉलर था, अब ये 212 पर आ गया है, फिर 206 पर आ गया। क्या दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह के रुपए की कदर गिराई जाती है दानिस्ता?
क्योंकि जब आप इम्पोर्ट्स बेतहाशा करते हैं, रुपए की कदर गिराते हैं, हुकूमत को टैक्सेस ज्यादा मिल गए, इम्पोर्ट्स की रुपीज ज्यादा हो गई, कस्टम ड्यूटी ज्यादा हो गई, उन्होंने कमा लिया, इम्पोर्टर्स ने कई सौ अरब रुपए कमा लिए, पाकिस्तान की मईशत को आपने तबाह कर दिया। आपने अपने रुपए की कदर को 152 रुपए से लेके मिड मई 2021 में अब 212 2006 पे ले आए। तो जो आपका कर्जा 80 अरब डॉलर का, जरा रुपये की करेंसी में कितना बढ़ गया, डेट सर्विसिंग कितना है, ये है अशराफिया, ये है माफिया, जिस पर हमें बात करते में हम शर्मा रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जरूर इम्पोर्ट्स कम करें, मगर बुनियादी जो मसले हैं। देखिए सर, मेरी बात नहीं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। दूसरी बात ये थी कि 111.4 क्या है? अरे भाई, आपने वो जाली है रेमिटेंसेस, वो जाली रेमिटेंसेस से आप क्या गुजारा करना चाहते हैं? क्या मैंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया गया कि आप? चलिए जी शब्बर साहब, अब आप। सर मैं आपको जवाब देता हूँ। सर देखिए, मेरी एक बात सुने, और दोनों मुखर्रीन के जवाब से मुझे ये सवाल, आर्गुमेंट से ये लगता है कि जो हमारे हुक्मरान रहे वो सब गैर वतन थे, वो इंटेंशनली पाकिस्तान को तबाह कर रहे थे, वो सब अमेरिका के एजेंट थे और वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए थे। देखिए, ये परसेप्शन हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे इमरान खान हो। ये तो मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत और गद्दारी के सर्टिफिकेट। सर ये रेटरिक खत्म करें ना। देखिए, वो रेटरिक नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, मगर कोई अगर जो परसेप्शन आप ये दे रहे हैं कि उन्होंने, मगर अगर आप गलतियां किए जा रहे हैं, आप मुसलसल गलतियां किए जा रहे हैं। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, बेटा मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ ये हम परसेप्शन गलत अपने दिमाग में डाल रहे हैं कि हमारे हुक्मरान किसी के एजेंट थे, अशराफिया के एजेंट थे, या किसी के गलत फैसले, हमसे गलत फैसले हुए हैं, हम ये मान रहे हैं। सुन ले मेरी बात। तो मुस्तकिल गलत फैसले क्यों हो रहे हैं? मुस्तकिल गलत हो रहे हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे शाहिद साहब से ये बता दें कि नेशनल सेविंग का जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, ये गवर्नमेंट कौन सा कारोबार कर रही है? कि ये क्या वजह है कि हम 30 साल से मुस्तकिल गलतियां किए जा रहे हैं? अगर एक गलती हो तो आप सीख लें। क्या करना है ये बताइए। सुन लीजिए, मैं जरा, मुझे बोल लेने दीजिए इरफान साहब। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि ये गलतियां हो, मगर आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आप कोई काम बार बार किए जा रहे हैं और वो गलत है और आप गलतियां किए जा रहे हैं और तवक्का कर रहे हैं कि इस दफा इससे बेहतर रिजल्ट्स निकलेंगे, तो आप इंसेन हैं। अगर आप गद्दार नहीं है तो इंसेन हो सकते हैं कि आप में इंसैनिटी है कि आप एक चीज को बार बार किए जा रहे हैं और गलती है और आप उससे बुरा, उसके नुकसानात हो रहे हैं, मगर आप उसको बार बार क्यों किए जा रहे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए इससे निकलने के लिए, IMF से निकलने के लिए हमें क्या करना है? आउट ऑफ द बॉक्स। हमें ये न्यू लिबरल मॉडल के मातहत होकर हम IMF से नहीं निकल सकते, अनसस्टेनेबल है। लिबरल मॉडल से निकलते हैं, फर्ज करें, तो उसके निकलने के लिए हमें 3 क्या बड़े इकदाम करने हैं कि हम इम्पोर्ट से जान छुड़ाएं। इरफान साहब, मैंने आपको बताया था कि मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान जो है वो वर्चुअली डिफॉल्ट की शक्ल में है। सबसे पहला हमारा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हम ये रियलाइज कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि हम आज एक डिफॉल्ट पोजीशन में पहुंच चुके हैं। जब हम इस रियलाइजेशन में पहुंचेंगे कि हम इस पोजीशन में हैं, तो हम करेक्शन करेंगे। अगर हम इस परसेप्शन में रहे या हम इस चीज में रहे कि किसने क्या किया, क्यों हुआ, ये इससे हमें डाइवर्जन होगी, तो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आज की पोजीशन में मैं दोबारा आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगले साल, इसको छोड़ दें, 22 गुजर गया ना जी, 22 चला गया। अगले साल मुझे बताइए आने वाला है 80 के करीब, ये मेरा इंपोर्ट का बिल होगा। ठीक है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप चाहे लिख लें, एक साल बाद मुझे बिल दीजिएगा। आपका एक्सपोर्ट होगा मैक्सिमम 33 या 34। ठीक है, आपकी रेमिटेंसेस होंगी तकरीबन 32। तो अगर आप 34 और 32 को मिलाएं तो ये होगा तकरीबन 66, और 80 का आपका होगा इंपोर्ट। तो 66 से माइनस करें तो 14 बिलियन का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, और अगर मैं ये भी एज्यूम कर लूं कि मुझे रोल ओवर मिल जाएगा, तो हमें 14 बिलियन फाइनेंस करना है कहीं से। ये है पाकिस्तान की इस वक्त पोजिशन, ठीक है, डॉलर में। अब मुझे ये बता दें, हम यहाँ आउट ऑफ बॉक्स बैठ के सब बातें कर रहे हैं, मैंने आपको यही बात की थी कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये है कि किस तरह से मैं इंपोर्ट को कम करूं
और एक्सपोर्ट को बढ़ाऊं, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना सर। अलावा और कुछ अच्छा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरा पहला आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये होगा कि मेरा जो एनर्जी का बिल है 30, हाँ उसको मैं 30 से कम करके 25 या 27 पे ले आऊं। पहला हमारा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये है कि हम किसी तरीके से अपना एनर्जी का बिल 25 से कम करके हम उसको ले आए, 30 से कम करके। दूसरा हमारा सोल्यूशन ये है कि जो हमारा सर्विसेज का बिल है ना सर, हम लोग रियलाइज नहीं करते, हम गुड्स को रिक्रूट करते हैं, सर्विसेज में आता है सर ये जो हम जहाज से सामान बेचते हैं ना, शिपिंग का, शिपिंग और एयरलाइन। आप सोचिए, आप मुझे बताएं इरफान साहब कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो सुबह शाम एमिरेट्स से जा रहे हैं और आ रहे हैं, हर फ्लाइट के ऊपर आप समझे $1 दे रहे हैं उसको। आप जो आपके लोग उम्रा ज़ियारत पे जा रहे हैं, समझ लेंगे इंपोर्ट हो रही है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि उम्रा ज़ियारत के लिए आपको सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम डालनी पड़ेगी, जो पहले भी थी कि अगर आपने उम्रा ज़ियारत करना है तो आप सेल्फ फाइनेंसिंग कराएं उन लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन सर ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों की तालीम का खर्चा बाहर से पे करें। ये सोल्यूशंस, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है उन लोगों के तालीम के लिए जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। हमारे तकरीबन 40 से 50 लाख बच्चा 40 से 50 लाख बच्चा पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहा है और उसके पैसे पाकिस्तान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जा रहे हैं। ये है तीसरा सोल्यूशन। चौथा सोल्यूशन ये है सर कि हमें इंपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर कुछ चीजों पर जेनरिक स्कीम लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल के अंदर हर चीज इंपोर्ट करा रहे हैं। हमें कुछ दवाओं को बैन करना पड़ेगा। अगर रेगुलर दवाएं हैं तो आप जेनरिक पे जाएंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है कि ब्रांड, आपको अगर ऑगमेंटिन नहीं मिलती तो ऑगमेंटिन की उसी दवा मौजूद है। तो ये वो चीजें हैं सर जो पाकिस्तान को अपनी जेब काट के करनी पड़ेंगी। बाकी आप मुझे वतन कहते रहे, मुझे कहते रहे, मेरा सिर्फ सोल्यूशन ये है कि मैं तो 4 नस्लों से यूके से रिलेट करता हूं और मेरा अगला घर भी वही है और मैं शायद खबर भी वही बनेगी। तो मुझे कोई उसकी दुश्मनी नहीं है उनके साथ, ठीक है। अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे वो निजाम दे रहे हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने आज तक किसी IMF पॉलिसी में कोई गलत चीज नहीं देखी है। हाँ, ये जरूर है कि हमसे अमल नहीं हुआ, कोई अलग बात है। हमसे अमल नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ शाहिद हसन खान साहब को कि 11/4 को मैंने 2019 में सही कर दिया था। अब 11/4 में मैंने लिमिट डाल दी है कि सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा वाला 11/4 नहीं हो सकता। और अगर शाहिद साहब को ये भी पता है कि मैंने 2019 में पीरा को भी चेंज कर दिया था। अब आप फॉरेन करेंसी बाय नहीं कर सकते अनलेस आप NTN नंबर में होल्ड करते हैं। कोशिश हमने जरूर की है, नाकामी और कामयाबी अलग बात है। तो मेरा सर कहने का गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सिर्फ ये है कि मुझे अपने इंपोर्ट बिल को किसी तरीके से स्ट्रेच कर 14 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है अगले 23 में, इसे मुझे स्ट्रेच कर 14 से 8-9 पे लेकर आना है। ये पाकिस्तान का आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है। अब हम लोग भी कुछ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी कंक्लूड आप फोकस यही करेंगे इंपोर्ट कैसे हम कम करेंगे क्या? देखिए असल में मैं कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि 111/4 को अगर आप मंसूख नहीं करते तो क्या खतरनाक सिचुएशन है मैं आपको बता दूं। इस साल $31 बिलियन की रेमिटेंसेस आई हैं, $31 बिलियन। उसका 44% यानी आधे से जरा कम सऊदी अरब और UAE से आया है। FATF को इस्तेमाल करके कोई भी किसी वक्त भी पाकिस्तान पे कब्जा लगा सकता है इन मुल्कों की रेमिटेंस में। अगर वो 5-7-10 अरब डॉलर का झटका लग गया तो आपको $1 अरब पे पूरा मुल्क नाच जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 44% ऑफ $31 बिलियन हम कारकुन भेज रहे हैं? स्टेट बैंक ये कहता है ये कारकुनों की तरसीलात है। कोई सवाल ये पैदा होता है जब तक 111/4 को मुकम्मल तौर पर मंसूख नहीं किया जाएगा, जाली रेमिटेंसेज आती रहेंगी, हम इंपोर्ट्स करते रहेंगे। आप पहले किश्ती चलाएं, क्योंकि कबल इसके FATF हमारे ऊपर पाबंदी लगाए, सऊदी अरब पर पाबंदी लगाए, UAE पे लगाए, ये वो तबाही है जो हम संभाल नहीं सकेंगे। खुदा के लिए इसको मंसूख कर दें। नंबर 1 बुनियादी बात कुछ कहना चाहूंगी। दूसरी बात ये थी, आप जरा 111/4 जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बात ये थी कि जब ये स्टेट बैंक ये कहता है, मैं पहले बता दूं मेरा वर्जन, स्टेट बैंक ये कह रहा है, बार बार कह रहा है ये कारकुनों की तफसीलात है। अरे भाई बड़े बड़े अमाउंट्स की रेमिटेंसेज आ रही हैं, क्या स्टेट बैंक को, हुकूमत पाकिस्तान को ये नहीं पता कि कारकुन बेचारे तो छोटी छोटी रकूम की बेचती है, क्या तो बड़े बड़े अमाउंट्स पे आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये $31 अरब की रेमिटेंसेज अगर एक साल में आ गई
या 100 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज इमरान खान की दौर में आ गई और 100 तकरीबन 105 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। कभी किसी ने सोचा 133 बिलियन डॉलर जो आए हैं वो कहाँ है पाकिस्तान में, उसका कहीं इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्यों नजर नहीं आ रहा? तो जिस मैं दिन भी ये कुछ बात कहना समझ चाह में रही हूँ। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि 4 साल में 105 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे और तकरीबन 28 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे और 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज, ये वो जाली खेल है जो पाकिस्तान को तबाह जरा कर रहा मुझे है। भी मौका और दे जिस वक्त दीजिए। IMF ने कदम लगाई, FATF ने कदम लगाई, तो आप क्या उसको संभाल सकेंगे? इसलिए पहले तो आप इसको मंसूख कर दीजिए। कहते हैं जी स्टेट बैंक के अलावा कोई नहीं पूछ सकता, ना ISI पूछ सकता है। अरे भाई स्टेट बैंक ने कब पूछा है? पाकिस्तान में जो माशी तबाही आई है उसमें स्टेट बैंक का इरफान साहब जरा मुझे भी कुछ लास्ट वर्ड कहने का मौका दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी क्योंकि आउट ऑफ मुझे भी बॉक्स कहीं करना है तो कुछ इसको काम है खत्म मुझे कर भी। दिया आप, वरना मेरे ख्याल से बेहतरी नहीं आएगी, इसी तरह चलता रहेगा। इम्पोर्ट्स हम करते रहेंगे क्योंकि पहले तो आप किश्ती जलाइए, किश्ती आप जलाएंगे तो फिर आप बरामदात बढ़ाने की बात करेंगे, फिर आप इम्पोर्ट्स कम करने की बात करेंगे, वरना जाली रेमिटेंस आ रही है, आती चली जाएंगी। मुझे कोई बता दे क्या सऊदी अरब से और UAE से 44% ऑफ 31 अरब डॉलर आ रही है? कारकुनों के इतने पैसे हैं। तो ये हमें पता है, हमें सबको पता है कि क्या खेल है। 900 मिलियन डॉलर अरब रुपए का मैंने कह दिया कि चोरी के असासे हैं। हर किस्म की आमदनी पे आप टैक्स लगाएं, वफाक भी लगाएं, सूबे भी लगाएं, GST को कम करें। ये चीजें अगर आप नहीं करते तो ये जो आज हम कह रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन में, अरे भाई 1990 की दिहाई में भी हम जो कर्जे लेते थे उसी में से कर्जा अदा करते थे। और कौमी बचत स्कीमों पर जो मुनाफा दिया जाता है जिसको सूद ही होता है, शब्बर साहब सही कह रहे हैं, वो सूद है, तो वो सूद भी आप कर्जा लेके दे रहे हैं। हराम पूरा खाओ, अच्छा, हराम अब खा रही है। मैं तो पहली अब बात मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे भी इजाजत है कुछ कहने की। जुमला पूरा कर दूं। मैंने जो खत लिखा है उसमें ये कहा है हराम कि खा लीजिए पाकिस्तान में कौम। इस्लामिक बैंकिंग नहीं हो रही, पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग मैं- नहीं हो रही। मैंने तो मेरे कभी नहीं ख्याल कहा कि में इस्लामिक अब बैंकिंग हो आप रही। दोनों को काफी इस्लामिक मौका बैंकिंग मिल गया, नहीं है, मुझे भी बोलने नहीं इट्स नॉट दीजिए। इस्लामिक बैंकिंग। ये सारा खेल जो है ये अशराफिया का खेल है। हमारी अदलिया ने, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शब्बर साहब की नॉलेज में है, हमारी अदलिया ने ये कहा कि जो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से बाहर गई है, जो उसको यहाँ वापस लाने की जरूरत नहीं है और हम हुकूमत की इस पॉलिसी की तौसीक करते हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का तो इख्तियार ही नहीं है। 184(3) के तहत नोटिस लिया गया था, शब्बर साहब को ये बात पता है। उस नोटिस में ये था बाहर से लूटी हुई दौलत आएगी तो आवाम पे खर्च होगी। और जब एमनेस्टी स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, अरे भाई आप होते कौन है इतराज नहीं करने वाले? अच्छा, मुझे भी जरा कुछ कहने दीजिए। 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं था। यहाँ तो लूटे, यहाँ पर जो है देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, सब लोगों से एक मैं इंडिविजुअल मुझे भी जरा मौका दे दीजिए। जी आप मैं बात ये कर कहना लीजिए चाह रही हूँ उसके- बहुत देर से हाँ। कि शब्बर जैदी साहब ने कहा कि IMF मॉडल में कोई खराबी नहीं है, हम इसको सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते। मेरे ख्याल में मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है और मैं आपको कुछ अपने आर्टिकल्स भेज दूंगी ताकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके शायद ख्याल आपकी में नजर क्या से इस वक्त हमें IMF से निकल जाना चाहिए? तो जी हमारे पास बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे डेट्स अनसस्टेनेबल हो गए। अगर हम मजीद IMF से कर्जे लेते रहे तो हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। और वो दूसरा तो मैं ये ये कह रहे कहना हैं कि चाह रही हम हूँ, पहले मैं ही जरा default में मैं जरा मुकम्मल कर लूं। ये जो बात की है एनर्जी सप्लाई की, जिसपे एनर्जी पे हमारा बहुत बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, हमें जरूरत है अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने की। और बहुत से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से हमें गैस भी और तेल भी सस्ते दामों मिल सकता है, और ऐसे दामों भी मिल सकता है जो हमें डॉलर्स में नहीं पे करना पड़ेगा, किसी और तरीके से हम पे करके अपने ये डॉलर्स बचा सकते हैं। मगर अगर हमारा किबला उस किसी दूसरी तरफ है और हम पाकिस्तान के मफादात का सोच ही नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं कि नहीं लेंगे तो वहीं से लेंगे, उसी दाम पे लेंगे, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को भी मैनेज करेंगे। देखिए, आपको सबसे ज्यादा हमें पाकिस्तान का सोचना है। इस वक्त हमें यह सोचना है कि पाकिस्तान को किन सोर्सेस से गैस और पेट्रोल सस्ते दामों मिल सकता है। अगर आप जो मेरा भी ख्याल वही में ईरान की तरफ रेफर कर रहे हैं। ईरान भी, रूस भी, ईरान भी, रूस भी। अच्छा, अब हम ले लेते हैं शब्बर बिल्कुल साहब सही को। कह रही है। मेरी भी ख्वाहिश ये है कि मैं शाम को जाके वाशिंगटन को गालियां दूं, मगर अब आप गालियां नहीं देने की जरूरत है आपको। मेरी बात सुन लें। अब ईरान से आपके रिसोर्सेज बनता है, ईरान बनता है, और आपका रिसोर्स बनता है रशिया। यही तो है ना एनर्जी के लिए। लेट अस कॉल ए स्पेड। ठीक है जी, आप मुझे बताइए कि ईरान से आप आज इस इंटरनेशनल मॉडल में क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ईरान से गैस बाई करे? लेकिन ये हम थ्योरी में कह देंगे कर ले। रशिया के साथ आपके पास आपका पोजीशन है, रशिया के साथ आपको जो डिफरेंशियल पड़ रहा है, मैंने कल ही इसको स्टडी किया है
सिर्फ $15 का पड़ रहा है, क्योंकि उनको वहां से लाना पड़ेगा। तो ये हमारी गलतफहमी है कि हम एनर्जी को किसी और सोर्स से मैंने भी स्टडी किया है। आप मेरे से अलग 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 सेमिनार कर लें इसके ऊपर। नहीं, मैंने भी स्टडी किया है। अच्छा, मैं अब चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। मुझे जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे महसूस हुई कि हमने बहुत ज्यादा खोल दिया इस सब्जेक्ट को, तो हम कोशिश करेंगे, आप सबको दावत देंगे, लेकिन वी विल मेक इट वेरी स्पेसिफिक। जैसे हम पेट्रोलियम के ऊपर एक दफा कर लें और एक आध सर्विसेज पे कर लें और इसके चीजों को अनफोल्ड करें। और आई एम सॉरी अगर आप किसी की दिल आजारी हुई है किसी के कमेंट से, आई टेक द ब्लेम कि आई वाज अनेबल टू मॉडरेट बेटर, एंड आई थैंक यू ऑल for being here, and inshallah I will like to have more detailed individual sessions with each one of you, so that one can hear in a much more easier manner. But it was a very interesting debate, and I can see the fault lines. The fault lines are about the perceptions of the role of IMF and US, and the perception about the Islamic banking, and the perception about the reality of what is plaguing. And I think this heated debate actually points out that we are really worried about the situation. इसकी positivity ये है कि it's no longer an academic discussion. It is much more near and dear to our heart. It is impacting everyone around us, the general public. सब आजकल इस मसले से दो चार हैं। हम सब लोग एक कर्ब और परेशानी और के आलम में होते हैं कि कल पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, और यूं लग रहा है कि हमारे हाथ से सारी चीजें फिसलती जा रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जो है अपने गुमानाबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, तो वो कोई कंदील रहबानी हो जाए, तो शायद हमें यकीन रखना चाहिए कि इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर, and we are all working together in our own ways. It's a healthy thing to have multiple perspectives of the same issue. उस multiple perspectives से हम एक दूसरे से सीखते हैं। हमें क्योंकि ये अब इकोनॉमी नहीं है, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी भी है, बिहेवियरल इकोनॉमी है, बिहेवियरल फाइनेंस है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, और ऑफ कोर्स इसके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और गवर्नमेंट्स हैं और उनकी इस्तेताअत कुछ है करने की और कुछ नहीं भी है, और ना उनके पास पॉलिटिकल पावर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो बेचारे कभी इधर घूम रहे होते हैं, कभी उधर घूम रहे होते हैं, और जो जिनके पास पावर होती है वो भी समझते हैं कि उनके पास पावर नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि उनके पास भी पावर नहीं होती है। तो ये एक हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टिपिकली जो न्यू कॉलोनियलिज्म रूल के अंदर ममालिक हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट, सीरिया, इस टाइप के मुल्क जो हैं, इन सब का हाल ऐसे ही होता है। वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर, बट आई थिंक वी हैव मैनेज्ड टुडे to focus on some very fundamental problems, and we have identified the areas that we need to work. I think Shabbar Saab mentioned वो जो $30 billion का जो मसला है, डॉक्टर शाहिद ने जो रेमिटेंसेस की बात की है, और डॉक्टर शाहिदा ने जो वो imports का जिक्र किया है, which can be reduced, but I think हमें जो गैप है is about $16-20 billion का हमारा अगले साल मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, and we have to do something, and we have to do now to overcome this yawning gap. वरना the situation is not as good for us. It doesn't. But I hope that we are all working and working hard, and I think I would like to thank each one of you. I'm grateful, Dr. Shahida Wazarat. I'm grateful, Dr. Shahid. I'm grateful, Shabbar Zaidi Saab, for being with us. And I'm reiterating my inability to actually have it in a more
congenial atmosphere. But thank you, everyone, for your time and effort and energy and your passionate pleas to bring sanity. Shukriya, Maud. Thank you very much.